Hello dear students, I hope you have all watched the video that I shared on the measurement of long distances, and in continuation with that topic, now we will discuss the determination of diameter of moon. Now look at the diagram that we want to find out the diameter of moon from Earth at a place and select at a place P. With the help of telescope, we will find the angle subtended by the diameter of moon at point P, and let this angle is theta. Okay, now this angle theta is called the angular diameter of moon. This is called, theta is called the angular diameter of moon. ओके बेटा, अब यहाँ हम suppose if d is the distance between the earth and the moon, and this distance, let's say it is the average distance, then we can write the formula that theta angle is equal to arc upon radius. We are going to use this formula here. AB, that will serve as the arc, and let it be equal to d, and angle, that is angular diameter of moon, theta, and this theta is the angle subtended by the diameter of the moon at any place on earth, and we determine this angle with the help of telescope. And this capital D is the distance of moon from earth. So we can have theta, that is in radian, it is equal to AB upon D, and theta is equal to D upon D. So D is equal to capital D into theta. So this is one of the indirect method to find out the diameter of moon, or it is the indirect method to find out some distance. That here we have used the concept of angle, plane angle. Okay, so the diameter of the moon is the product of distance of moon from earth and the angular diameter of moon. Okay, now the above, this method can be used to determine the size of an astronomical object. अब अगर यही मेथड, अगर हमसे कोई कहे जुपिटर का साइज क्या है, जुपिटर का डायमीटर क्या है, किसी और प्लैनेट का अगर हमें साइज फाइंड आउट करना है, तो हम ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं. ओके, अब बेटा एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्योंकि यहाँ जो एंगुलर डायमीटर है, अब अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें या कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करें, तो हमें थीटा जो है वो गिवन होगा, डिग्रीज में गिवन होगा, या मिनट में गिवन होगा, सेकंड में गिवन होगा. देन वी नीड टू कन्वर्ट दैट angle in degrees into radian. So here we will have an exercise, and that is also in that is given in your NCERT book, that convert 1 degree into radian. ये एक एक्सरसाइज पहले हम करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो वी नो दैट 180 degrees that is equal to pi radian. आपको मालूम है pi means 22/7 or 3.14. So 1 degree equal to pi upon 180. If you solve this, and this will in radian, if you solve this, this will come out to be 1.745 into 10 raised to the power minus 2 radian. Now we know that 1 degree is equal to 60 minutes. So 1 minute and 1 degree 60 minutes means 1.745 into 10 raised to the power minus 2 radian.
So 1 minute is equal to 1.745 into 10 raised to power minus 2 divided by 60, and if you solve it, this will come out to be 2.908 into 10 raised to power minus 4 radian. Similarly, we can write that 1 minute is equal to 60 seconds, and this is equal to 2.908 into 10 raised to power minus 4 radian. So 1 second is equal to, is it visible? Okay. 1 second is equal to 2.908 divided by 60 into 10 raised to power minus 4 radian, and that will come out to be 4.847 into 10 raised to power minus 6 radian. Okay beta, so you have to keep in your mind that whenever or wherever you are provided with theta angle in terms of degrees, minutes or second, then you have to convert that angle in terms of radian, and then only you will apply this concept that angle is equal to arc upon radius. And by using this method, expressing angle in radian, we can find out the size of astronomical objects. Now beta, coming to a sample problem based on the finding the diameter of moon. Let us read out this problem. The angle subtended by moon at a point on earth is 0 degree 31 minute. If the distance of moon from earth is 3.84 into 10 raised to power 8 meter, find the diameter of moon. हम इसमें सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. You can see that this is the moon, and here we have any point on earth, right? The diameter of moon, let's say the diameter is AB, it is subtending angle theta, and here theta is given as 0 degree 31 minute. The distance of moon from earth, so this distance we are provided here, this d is 3.84 into 10 raised to power 8 meter. So we know that theta, that will be in radian, it is AB, arc upon radius, that is capital D. So AB is equal to theta in radian and multiplied by the distance. Now we have to convert first 31 minutes, 0 degree 31 minute into radians. Now 0 degree 31 minutes, that is equal to 31 minutes, क्योंकि डिग्रीज में 0 दिया हुआ है. अगर ये होता 1 डिग्री एंड 31 मिनट्स, तो 1 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करते 60 मिनट और उसमें 31 मिनट्स और ऐड करते, लेकिन यहाँ कितना डिग्री दिया गया है? 0. ठीक है, तो वी नीड नॉट टू कन्वर्ट 0 डिग्री इनटू मिनट्स, वी विल जस्ट राइट 31 मिनट. नाउ वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 2.908 into 10 raised to power minus 4 radian. Fine. So what is AB now? 31 minutes into 2.908 into 10 raised to power minus 4 into capital D, that is 3.84 into 10 raised to power 8 meter. Now if we solve this, what we will have? 3.46 into 10 raised to power 6 meter, and this is the diameter of moon. बेटा, इस सैम्पल प्रॉब्लम में आपको कहाँ नई चीज़ समझने को मिली है? फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं. फॉर्मूला आपने कैसे लगाया? जब आपके सामने जो पूरा स्टेटमेंट है, आपने उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट किया. डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्लियर हो गया है कि आपको कॉन्सेप्ट, आपका अप्रोच क्या होगा. आपको फॉर्मूला ये लगाना है. फिर उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमें एंगल दिया गया है वो कॉम्बिनेशन में दिया गया है, डिग्री, मिनट, सेकंड.
तो हमें उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस हियर. देन वी हैव टू अप्लाई द formula and we will find out the answer. Now beta, coming to the second problem, the sun's angular diameter is measured to be 1920 second. The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 raised to power 11 meter. Now what is the diameter of sun? इसका मतलब this is angular diameter means sun and here it is earth. Okay, what is given to you? This theta is given to you and the distance d, the distance d from sun to earth, it is given 1.496 into 10 raised to power 11 meter. What you have to find out? This small d. So you will apply the formula that theta in radian, that is d upon capital D, arc upon radius. So d is equal to theta into d. Now what is theta here? 1920 seconds. This seconds, that should be multiplied with 4.84 into 10 raised to power minus 6 and that will be in radian. Now you can easily find out what is the diameter of sun. This quantity 1920 into 4.84 into 10 raised to power minus 6 and this distance 1.496 into 10 raised to power 11, and you can find out on solving this. You will find it is equal to 1.39 into 10 raised to power 9 meter. Okay beta, so these are the two examples for finding the size of astronomical objects by using this method of angle, plane angle, that is plane angle is equal to arc upon radius. Now we will switch to another method that is called parallax, and parallax again in turn the formula that we will use in case of parallax, that will also equal to this theta equal to arc upon radius. And you know what is parallax? Parallax, that is a shift in the position of the object when it is viewed from two different positions. और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि आपको एक एक्टिविटी करनी है कि अपनी सराउंडिंग में आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पहले अपनी एक लेफ्ट आई से देखेंगे और फिर आप उसको राइट आई से देखेंगे, क्लोजिंग द अदर वन. देन यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. And that shift in the position when it is viewed from two different two points of observation, then that shift is called the parallax. Okay, so beta parallax, it is defined as the apparent shift of a body with respect to another. With respect to another means suppose हमने कोई ऑब्जेक्ट को हमने फोकस किया है और मेरे सामने कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ है और मैं इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड यानी कि वॉल के रिस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व करती हूँ, एक बार लेफ्ट आई से और दूसरी बार राइट आई से. तो वॉल के रिस्पेक्ट में मुझे इसकी पोजीशन में क्या मिलेगा? आई विल ऑब्जर्व सम शिफ्ट. सो पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट शिफ्ट ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर with the shift of eye. with the shift of eye means कि एक बार हमने इसको लेफ्ट से ऑब्जर्व किया और दूसरी बार हमने इसको राइट आई से ऑब्जर्व किया. अब इसी चीज़ को डायग्राम से हम कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है O और यहाँ लेफ्ट आई से और हमने इसको राइट आई से हमने ऑब्जर्व किया. तो फॉर लेफ्ट आई एंड फॉर राइट आई यू कैन सी दैट लाइन ऑफ साइट ये चेंज हो गए, इनकी डायरेक्शंस चेंज हो गई हैं, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अपरेंट शिफ्ट को महसूस किया गया है. सो
two lines of sight, one with respect to left eye and another with respect to right eye. They subtend some angle theta at the position of the object, and this theta angle is called the parallax or parallactic angle. What is theta? Theta is the parallactic angle. Now here LR, this gap between the two positions, जहाँ से हमने उस ऑब्जेक्ट को, वो दो डिफरेंट पोजीशंस जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है, उन दोनों पोजीशंस के बीच का जो गैप होता है वो गैप कहलाता है बेसिस. सो एल आर हियर इट इज इक्वल टू बी एंड इट इज कॉल्ड बेसिस. अब यहाँ x इज द डिस्टेंस बिटवीन the first position and the object, and same it is the distance between the first position of second position and the object, and let it be equal to x. Now here we can assume or we can treat LR as the arc of a circle and x can be treated as the radius. Then again we can apply the formula for plane angle, that theta is equal to LR upon OL, or we can write theta is equal to B upon x. अब यहाँ अगर हमें थीटा मालूम पड़ जाए या हम थीटा को डायरेक्टली मेजर करें, देन वी कैन वर्क ऑन x. और b भी हमें पता है कि हम दो पोजीशंस कौन कौन सी ले रहे हैं और उन दो पोजीशंस के बीच में कितना गैप है. अगर हमें इफ थीटा एंड b आर नोन टू us, then we can work on x, यानी कि we can determine x. किसी भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का हमसे कितना डिस्टेंस है. मान लीजिए अगर हम अर्थ से मून का डिस्टेंस पता लगाना चाहते हैं, हम अर्थ से सन का डिस्टेंस पता लगाना चाहते हैं, देन वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट. ओके, अब पैरेलैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज करेंगे टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड. So to determine the distance of moon from earth and using parallax method, better see this is earth and here we will select two diametrically opposite positions of earth. यानी कि अर्थ है और अर्थ के बिल्कुल हमने इसके सरफेस पर दो ऐसी पोजीशंस को सेलेक्ट किया जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं. ठीक है, और हम अब मून को यहाँ लेते हैं. मान लीजिए ये मून है, राइट, और मून का डिस्टेंस हमें अर्थ से चाहिए. ठीक है, तो अभी ये लाइन में क्यों खींच रही हूँ, इसका मोटिव मैं आपको अभी बताती हूँ. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द लाइन. अब अगर मैं, आप कहेंगे कि आप यहाँ पर आप वही प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट या पैरेलैक्स का कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि साइमल्टेनियसली मैं पोजीशन ए और बी से थीटा मेजर करूं? क्या मैं एक ही वक्त में ए और बी पर मौजूद हो सकती हूँ? नहीं मौजूद हो सकती. तो ये जो एंगल थीटा है ये मैं सिर्फ ए और बी पर, क्योंकि ए और बी जो दो पोजीशंस हैं वो अर्थ पर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर हैं, तो हम थीटा डायरेक्ट ए बी से ऐसे मेज़र नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट हमें सेम डायरेक्शन में पोजीशन ए से भी नज़र आए और उसी डायरेक्शन में हमें वो ऑब्जेक्ट पोजीशन बी से भी नज़र आए. तो सोचो कि कोई हमने एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, जैसे कि बहुत दूर एक स्टार को आपने सेलेक्ट किया, और या मान लीजिए आपने सन को सेलेक्ट किया. अगर तुम पोजीशन ए पर हो तो भी तुम्हें सन आपको इस डायरेक्शन में नज़र आए, और अगर पोजीशन बी पर हो तो भी आपको सन इसी डायरेक्शन में नज़र आए. तो उस केस में हम इस थीटा को तो फिलहाल अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते.
और इस एंगल को मेज़र करने के लिए हम एक अलग तरीका ये ले रहे हैं कि हम एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जो कि कोई स्टार हो सकता है, और उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम फोकस करेंगे। ये मान लीजिए ये स्टार है एस, ये यहाँ पर है, और अगर मैं पोजीशन बी पर होती हूँ तो भी मुझे ये स्टार जो है ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में नज़र आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसकी डायरेक्शन में मिनिमम चेंज आएगा। तो यहाँ पर मुझे स्टार एस यहीं पर नज़र आ जाता है सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्टार जो है इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, राइट। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि मान लीजिए आप अपने घर से नरेला से मान लीजिए आप कनॉट प्लेस जा रहे हैं और आप जीटी रोड पर हैं। अब जीटी रोड पर अगर मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से बाहर देख रहे हैं तो पेड़ पौधे जो हैं वो इमीडिएट रिलेटिवली पोजीशन बदलते नज़र आ रहे हैं। एक मोमेंट में आप राइट साइड में देखते हैं तो सामने आपको एक पेड़ नज़र आता है और उसके पीछे आपको आसमान में सन भी नज़र आता है, लेकिन जैसे ही 2 सेकंड गुजरे वो पेड़ पीछे रह जाता है लेकिन सन फिर भी आपके सामने रहता है। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमसे दूर होगा तो जो रिलेटिव पोजीशन है उसकी दैट विल बी मिनिमम चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशंस, राइट। तो सेम ये इस केस में है कि ये स्टार जो है ये हमसे इतना दूर है कि अगर हम ए पर हैं तो भी हमें इसी डायरेक्शन में नज़र आता है, अगर हम पोजीशन बी पर हैं तो भी हमें ये इसी डायरेक्शन में नज़र आता है। अब साइमल्टेनियसली हम कौन सा एंगल मेजर कर सकते हैं, ये एंगल मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर दिस एंगल। मैं पोजीशन ए पर हूँ, मैंने स्टार को फोकस किया और उसी वक्त मैंने मून को फोकस किया और मुझे यहाँ पर एक एंगल मिला, पैरेलैक्टिक एंगल मिला θ1, ठीक है। फिर मैं पोजीशन बी पर जाती हूँ और वहाँ फिर मैंने साइमल्टेनियसली मून को फोकस किया और उसी स्टार को फोकस किया, फिर मुझे मिला एंगल θ2। एंड नाउ बाय ज्योमेट्री ये थोड़ा सा डायग्राम, ये लाइन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, अदरवाइज सिमेट्रिक डायग्राम है। यहाँ पर दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू θ1 if I join this moon with that of center of earth, and this angle is θ2, okay, by geometry. Now in this way you can find out the parallactic angle, that is theta. It is equal to θ1 plus θ2, okay. Now also as this distance AM is approximately equal to m into c, mc, that is the distance of earth from moon, and I can write here that the parallactic angle theta is equal to arc upon distance. I can write it as AB upon AM, arc upon radius, and AM, I'm sorry, it is arc AB upon AM, and AM is equal to MC, so I can write it as AB upon MC, and this MC, it is equal to AB upon theta. And what is MC? Let it be X. X is equal to diameter of earth. We can write it as diameter of earth. You know that this is diameter of earth, and the parallactic angle, that is θ1 plus θ2. Okay beta, so in this way you can find out the distance of moon from earth. Okay, अब इसमें सिर्फ आपको क्या समझना है, अब अगर कोई कंफ्यूजन अगर बच्चों को ये आ सकता है कि हमने स्टार को यहाँ पर इसकी हेल्प क्यों ली। इसकी हेल्प हमने इसलिए ली क्योंकि हमें मून का ये पैरेलैक्टिक एंगल फाइंड आउट करना है, और ये पैरेलैक्टिक एंगल हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है,
अर्थ के दो जो डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस हैं, क्योंकि फाइनाइट, इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि मून और अर्थ का डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी कितने डिस्टेंस पर है जी, 2000-3000 किलोमीटर पर है। तो अगर जितना ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर होता जाएगा उतना ही पैरेलैक्टिक एंगल कम होता जाएगा। तो यहाँ पर एक बात सोचने की ये भी है कि हमने ये अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स को ही क्यों लिया, ताकि ये थीटा जो है कुछ मेजरेबल क्वांटिटी हमारे सामने आए, कुछ नोटिसेबल क्वांटिटी हमारे सामने आए। फिर दिक्कत ये आई कि एक ही वक्त में हम अर्थ के डायमीटर के दोनों पोजीशंस पर, अपोजिट एंड्स पर हम कैसे मौजूद होंगे ताकि हम थीटा को फाइंड आउट कर लें। उसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला कि इसको पार्ट्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं जो दोनों पोजीशन से हमें सेम डायरेक्शन में नज़र आए। हम पोजीशन ए से फिर स्टार एस को हमने फोकस किया, मून को फोकस किया, हमें थीटा 1 हमें यहाँ मिल गया। फिर हम पोजीशन बी पर जाते हैं, हमने मून को फोकस किया और स्टार को फोकस किया साइमल्टेनियसली, देन वी कैन कैलकुलेट एंगल थीटा 2 एंड with the help of theta 1 and theta 2 we can calculate the parallactic angle, this theta that is at moon subtended by the diameter of earth, and by applying the formula and solving that we can find the distance of moon from earth. Okay, I hope you understand the concept, and if you have any query then please share on the WhatsApp group. तो बेटा कल हम इसी कॉन्सेप्ट का एक और एग्जाम्पल लेंगे टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ नियर स्टार फ्रॉम अर्थ। अब एक हम जैसे सन का, अगर हम सन का डिस्टेंस निकालना चाहें या सन से भी आगे अल्फा सेंचुरी जो हमारा पड़ोसी स्टार है सन के बाद, तो हम अगर अल्फा सेंचुरी या कोई ऐसा स्टार जो सन के नेक्स्ट है, हम अर्थ से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो हम इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।